Welcome back, ladies and gentlemen, to our post-lunch session at the Gems and Jewelry Banking Summit, an initiative by GJC. We are grateful to our title partner, World Gold Council, powered by Sri Kunj, Kolkata, and supported by Bangalore Refinery, Mukti Gold and Diamonds, Yes Bank, and Lakshmi Diamonds, Bangalore. Ladies and gentlemen, kindly take your seats. We are about to begin. Ladies and gentlemen, do take your seats. We are about to begin. Ladies and gentlemen, our first session after lunch and our third session at the summit will put the spotlight on banking strategy to revitalize and empower. It's my privilege and pleasure to welcome our panelists and our moderator on stage. Mr. Neville Patel has an overall experience of 23 years in financial markets, covering mutual funds, debt markets, and bullion markets. He heads the bullion desk treasury for HDFC Bank and has led the bank from strength to strength in becoming a market leader in the bullion market. He is actively involved in developing the Indian bullion market by engaging with the government and regulators and has participated in multiple working groups for the betterment of the markets. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. Neville Patel, Senior Vice President, HDFC Bank. Mr. Kinjal Shah is Head of Asian Development, RJC. He joined RJC in April 2015 and is responsible for establishing the appeal and relevance of the RJC in the Asian market. He is based in Surat. Kinjal has over 2.5 decades experience in the sustainability sector with several industries, 20 of years of which is within the gem and jewelry industry. A warm welcome to Mr. Kinjal Shah. He is a specialist engaged in the precious metals industry with over 16 years of experience. He possesses sound knowledge of international trade, business and marketing strategies and is well versed with statutory and regulatory guidelines pertaining to the gem and jewelry industry. At present, he heads the Andhra and Telangana markets of the Precious Metals Division for Karur Vysya Bank. Please welcome Mr. Prabhu KK, Chief Manager, Karur Vysya Bank. Mr. Nitin Khandelwal is a distinguished leader in the jewelry industry and has left an indelible mark through his multifaceted contributions. As the past chairman of the Gem and Jewelry Council, he spearheaded pivotal initiatives addressing industry-wide concerns. He is vice president of the Maharashtra Saraf Mahamandal, founder-convener of PMI, past chairman of the Vidarbha Chamber of Commerce, member of the Railway Users Consultative Committee, and President of Nagpur's Premier Gold Souk, facilitating a robust B2B, B2C and manufacturing engagements. Ladies and gentlemen, let's hear from Mr. Nitin Khandelwal. Mr. Ashish Pethe is immediate past president GJC. He is a partner at Vamanhari Pethe Jewellers, one of the most trusted and renowned retail jewelry chains in Western India. Established in 1909 and having operations spread across 3 states through 25 stores, the company employs nearly 1,000 personnel. He has also been Director Gem and Jewelry Skill Council of India 2023, member of the Advisory Committee and Export Committee set up by the Ministry of Consumer Affairs on implementation of mandatory hallmarking in 2021, and he is Director at IBJA. He is a BE Electrical from VJTI Mumbai with an MBA in Marketing from Symbiosis Institute of Business Management Pune and completed a certificate course in diamond grading from the International Gemological Institute. Ladies and gentlemen, it's here for Mr. Ashish Pethe. Mr. Chirag Sheth is Principal Consultant, South Asia Metals Focus. He has 19 years of experience and is Principal Consultant at Metals Focus and the head of its India office. Chirag covers the precious metals markets of Asia and is a regular speaker at conferences. He has a bachelor's degree in management and a postgraduate in finance. He is on the advisory committee of the Gift City headquarter regulator IFSCA. Mr. Chirag Sheth.
And ladies and gentlemen, someone we are looking forward to hearing and seeing in action, Mr. Mrityunjay Kumar Jha, commodity editor, Zee Business. Mrityunjay Kumar Jha is commodity editor of Zee Business. He's been associated with Zee Business for the last 16 years. Prior to joining Zee, he was with CNBC Awaaz. He has more than 18 years of experience in commodity markets. His commodity program is widely viewed and is the number one among all business channels with more than 70% of the total broadcast viewer base. Mr. Jha has deep research and investigating intellect, based on which he has exposed many scams of the commodity market on Pulses, Castor, Aguar, Jira, etc. He has won more than 25 awards in the field of journalism and broadcast. A warm welcome to Mr. Mrityunjay Kumar Jha. And ladies and gentlemen, I'm sure we are all tuned in, all riveted and ready for a very informative, very insightful panel discussion. Over to Mr. Mrityunjay Kumar Jha. Over to you, sir. Check. Thank you very much, GJC, and I am honored to be here as a moderator of this very important panel, banking strategy क्या होनी चाहिए ज्वेलरी सेक्टर के लिए. तो आई एम वेरी honored to be here, and I hope you all enjoy this session because we have very top mind of banking and jewelry sector. अब जब ये टॉपिक हमें दिया गया तो मैं ये सोचा, क्योंकि मैं तो गोल्ड ट्रैक करता हूँ ज्वेलरी, लेकिन गोल्ड, ज्वेलरी और बैंक को एक साथ देखना, जो इश्यूज़ हैं बैंकिंग के और जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है उनको बैंक से क्या चाहिए और बैंकिंग सेक्टर को ज्वेलरी इंडस्ट्री से क्या चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है. और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप देखिए कि बैंकिंग समिट है, और मुझे लगता है कि इस तरह का ये पहला इनिशिएटिव है जीजेसी का, जब इन्होंने बियॉन्ड ज्वेलरी सेक्टर देखा है कि किस तरह से कोरिलेशन बैंकिंग सेक्टर के साथ और ज्वेलरी के साथ हो सकता है. जब हम बैंक की बात करते हैं तो बैंक का मतलब क्या होता है? बैंक का अगर आप देखें तो बैंक का मतलब होता है भरोसा, मतलब आई बैंक ऑन यू, मतलब मैं आप पर भरोसा करता हूँ. तो बैंकिंग की जब बात आती है तो मतलब एक ट्रस्ट की बात आती है, और जब आपके साथ कोई किसी इंडस्ट्री के साथ जब कोई ट्रस्ट जुड़ता है तो आपकी जो ग्रोथ है वो और रोबस्ट हो जाती है, और उसमें कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी आती है इस पूरे ट्रेड में. तो उस लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने हमारे वेटरन पैनलिस्ट हैं ये आपको वो इनसाइट्स देंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ वाकई अगर बैंकिंग के साथ, बैंकों के साथ अगर ठीक तरीके से कोरिलेशन बिठाया जाए तो आपका बिजनेस और बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी और आपका बिजनेस ज़्यादा इजी होगा. तो मेरा सबसे पहला सवाल आशीष जी आपसे होगा, चूँकि आप इस इंडस्ट्री को बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, आप जरा बताइए कि आपको क्या लगता है, मतलब आपके लिए बैंकिंग सेक्टर क्यों ज़रूरी है, मतलब ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए बैंकिंग सेक्टर क्यों ज़रूरी है? गुड आफ्टरनून सभी को. एक्चुअली मैं आप सबों से कुछ सीखने आया था, लेकिन सनी भाई ने मुझे पैनल में डाल दिया, तो मुझे बात करना आपको सिखाना पड़ेगा. तो मैं मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करता हूँ कि आपने सही कहा कि बैंकिंग अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, और ये जो चेंज आया है बैंकिंग हमारी इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट होने का जाए, उसमें दो तीन चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट थी. एक तो जब जीएसटी आया था और डीमोनेटाइजेशन हो गया था, एंड व्हेन द होल इकोनॉमी वाज ओपनड अप. पहले लोग क्या कहते थे, जैसे शुभंकर जी ने भी कहा था और रमेश जी ने भी कहा था कि सब लोग अपने पास जितनी मूड़ी है उसी में काम करते थे, या तो फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली से पैसा लेके मूड़ी खड़ा करके उसको घुमाते थे. लेकिन अभी पूरा लैंडस्केप ज्वेलरी इंडस्ट्री का चेंज हो गया है, क्योंकि कॉरपोरेट्स हैव कम इन, आदित्य बिरला हो, रिलायंस हो, टाटा हो, वो हैव डीप पॉकेट्स. तो उनके लिए यहाँ से पैसा कमा के इसमें इन्वेस्ट करना ये नहीं था. दे केम विथ मनी बैग्स, और वो अपना और बाकी इंडस्ट्रीज़ का जो कमाया हुआ धन है वो डाल के सडनली दे कैन कम टू अ लेवल. और जीएसटी आने से एवरीथिंग बिकेम स्ट्रीमलाइन, लोगों का बिलिंग सबका बढ़ गया. जीएसटी पहले क्या होता था, आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल ग्राउंड लेवल का,
क्यों इम्पोर्टेंट हो गया? ये पहले सोने की इंडस्ट्री में बार्टर चलता था कि किसी ने 5 किलो का माल जमा किया और तो ज्वेलर उसको धीरे धीरे 1 किलो ऐसा करके सोना देता था, विच वॉज बार्टर्ड अगेंस्ट द ज्वेलरी दैट ही हैज़ बॉट फ्रॉम हिम। तो ये बार्टर चलता था पहले, फिर वैट आ गया और वैट के बाद जीएसटी आ गया, तो ये बार्टर टोटली बंद हो गया। तो सिर्फ बाइंग और सेलिंग ये होने लगा। राइट। और पहले प्राइस कोई ओपन रखता था, कोई प्राइस करके देता था, लेकिन अभी जीएसटी आने के बाद आपको डे 1 पे प्राइस करके इनवॉइस बना के माल देना है, और उसका समझो पेमेंट साइकिल किसी का 15 दिन या 1 महीना है, तब तक आप हाथ पे हाथ लेके नहीं बैठ सकते। यू हैव टू स्टार्ट डूइंग योर नेक्स्ट प्रोडक्शन। तो पहले तुम्हारा मूडी उतना अटकता नहीं था, जब भी इतना अभी वो प्रॉब्लम आ रहा है। सेकंड पॉइंट कि भाव फिक्स होने के बाद उसको सामने दूसरा भाव फिक्स करके दूसरा माल लेना पड़ता है। सो सडनली रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन द जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस सडनली बढ़ गया है। दिस इज़ नंबर 1 फैक्टर। नंबर 2, अगर आपको ग्रो करना है, क्योंकि धीरे धीरे लोगों का विजन बढ़ते जा रहा है, इवन मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स स्पेशली, उनको नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ाने हैं, लोकल ज्वेलर्स को बड़ा शोरूम करना है, बड़े ज्वेलर को रीजनल चेन बनना है, रीजनल को नेशनल चेन बनना है। तो उसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत है, और अभी विद द काइंड ऑफ मार्जिन दैट यू आर गेटिंग टू स्लोली ग्रो एंड देन बिकम लार्जर ऑर्गेनाइजेशन अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक बात है। तब तक बाकी लोग आगे चले जाएंगे। ये 2-3 चीज़ों के कारण से मेरे हिसाब से बैंकिंग सडनली इन लास्ट 4-5 years हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये आपने बहुत डिटेल में समझाया कि बैंकिंग पिछले 3-4 सालों में इस इंडस्ट्री के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी बैंकिंग सेक्टर बन गया है, ये आपने बताया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि चूँकि हमारे साथ बैंकर भी हैं, ज्वेलर्स भी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि पहले ज्वेलर्स हमें ये बताएं कि जो उनका रिलेशन है अभी बैंकों के साथ, या जो ट्रेडिंग रिलेशन है, जो कामकाज का रिलेशन है, वो किस तरह से है, क्या स्मूथ है या कुछ हर्डल है, डिफ़िकल्टीज़ है, ये पहले हम जानेंगे। फिर हम बैंकों से जानेंगे कि उनको क्या दिक्कत आ रही है और वो कैसे इस पूरे सिस्टम को और बेहतर कर सकता है। तो नितिन जी, आप ज्वेलर हैं, बैंकों से काम पड़ता होगा मेरे ख्याल से, अब चूँकि आप तो कैश में उतना काम करते नहीं हैं, है ना? है ना? तो आप अपनी मतलब ये बहुत ज़रूरी है, चूँकि आप लगातार इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आप ज़रा बताइए कि जब आप इंटरेक्ट करते हैं बैंकों के साथ अपने बिजनेस के सिलसिले में, क्या ये स्मूथ इंटरेक्शन है या कहीं पे कोई हर्डल आपको दिखता है, लगता है कि आपको ये चेंजेज होना चाहिए? मतलब क्या सपोर्ट आपको बैंकों से चाहिए और क्या वो सपोर्ट आपको मिल रहा है? पहले तो मैं मृत्युंजय जी आपको बताऊंगा, फॉर्चुनेटली इतने छोटे सिटी से मैं होके भी आपने मेरे शोरूम पे विजिट किया, वर्किंग भी देखा है, तो कितना कैश चलता है और कितना ऑथेंटिकेट चलता है, हाँ वो सब आपको पता है। यू ट्रैवल ऑल द फ्लोर, सो ही नो वेरी वेल कि क्या चलता है। देखिए मृत्युंजय जी, 10 साल पहले हम जरूर जीजेसी के तरफ से गवर्नमेंट के पास जाते थे कि जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर को नॉन प्रायोरिटी में डाला था, और काफ़ी दिक्कत आती थी। जो लिमिटें तो नहीं बनती नहीं थी, पर जो एग्जिस्टिंग लिमिट्स थी उसको भी कम करने के लिए प्रेशर डाला जाता था। लेकिन जब हम लोगों ने बहुत सक्सेसफुली गवर्नमेंट को समझाया कि ब्लैक शिप्स ऑफ एवरीवेयर, हमारे इंडस्ट्री में 2 लोगों ने गलत काम कर लिया और 2 लोगों के भरोसे आप पूरे इंडस्ट्री को देख नहीं सकते, और हमने ये चीज़ गवर्नमेंट को सक्सेसफुली उस समय पूरी बताई। मुझे जी आपके आने के पहले यहाँ ये चल रहा था कि बैंकिंग के रिलेशन कैसे क्या है, बहुत ज़ोरों से बात चल रही थी कि आपके क्रेडिट रेटिंग और आपके ग्रेडिंग के ऊपर और रेटिंग के ऊपर आपको करती है। लेकिन अशोक भाई साथ में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर के साथ हमारी बात हो रही थी जब हम बोल रहे थे कि बैंकिंग को हमको पैसा नहीं मिलता, तो उन्होंने बोला था कि क्रेडिट आपका रेटिंग अच्छा रखो, आपको पैसा मिलेगा। अब मैं सबको ये बताना चाहूँगा सर, AAA+ रेटिंग बगैर तो 1000 करोड़ मिलता नहीं है, और जितनी गड़बड़ियाँ हैं वो AAA+ रेटिंग के अंदर ही है। 5-25 करोड़ का हमारे शरीर का आदमी जिसकी BBB+ है वो तो पैसे लेके भागता नहीं है, और भाग के कहाँ जाएगा? नहीं, जिसके पास AAA रेटिंग है, जो 1000 करोड़ 500 करोड़ ले रहा है, वही भाग सकता है, वही भागेगा। उसी के भागने का इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो मेरा ये कहना है, फर्क नहीं पड़ेगा ना हाँ उसका। तो मेरा ये कहना है कि 25-50 करोड़ वाला कभी सुनने में नहीं आता कि पैसा लेके भागा, जिसकी BBB+ है वो सब है। 25-50 करोड़ में हमारी न्यूज़ भी नहीं बनती, न्यूज़ भी नहीं बनती, न्यूज़ के लिए कम से कम 500 करोड़ चाहिए। हाँ तो मेरा ये एक सुझाव है आज के फोरम से कि जो क्रेडिट रेटिंग की जो सिस्टम इतने समय से चलती आ रही है, उसको वो थोड़ा सा सुधारना करे। क्योंकि अभी बातों बातों में किसी ने बताया कि आप थोड़ा सा उसको मैनिपुलेट कर लीजिए, उसको ये कर लीजिए,
तो मुझे याद आ गया कि जब ये सर ये कोविड आ रहा था या बर्ड फ्लू चल रहा था, मैं हांगकांग से आ रहा था एग्जीबिशन से, तो देखा कि वो टेम्परेचर टेस्ट करने वाले सब ने दो दो क्रोसिन ले लिया हमने कि भाई एयरपोर्ट पे रोके नहीं। तो ये बर्ड फ्लू था कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन क्रोसिन लेके हमने अपनी रिपोर्ट अच्छी बना लिया और हमारे को एयरपोर्ट पे किसी ने रोका नहीं और घर जाके फिर बीमार हो गए। तो ये जो टेम्पररी बैलेंस शीट को जो करते हैं वो बैंक जो है उसको, और जो नहीं करते उनको एक तरीके से उन्होंने देखना नहीं चाहिए। और जहाँ तक कैश का है, एक बहुत बड़ा एलिगेशन होता है हमारे इंडस्ट्री के ऊपर कि कैश फ्लो फिर भी ज़्यादा है, कि 2 नंबर का पैसा आता है। एक सर्टन में हम लोग फिर सेंट्रल मिनिस्टर के पास गए थे जब उन्होंने बोला कि आप 2 नंबर का पैसा बहुत एडजस्ट करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो 2 नंबर का नहीं पैसा होता, मैं आपको एक नया नंबर देता हूँ। वो होता है 3 नंबर का पैसा। अच्छा, अविनाश जी हंस रहे। अब ये 3 नंबर क्या होता है? 2 नंबर 3 नंबर में क्या फर्क? हाँ सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर जो पूरा अपने बुक्स में है, सारा सब कर लिया। 2 नंबर जो बुक्स के बाहर है। सर 3 नंबर ऐसा है कि मैं मेरे वाइफ को 1 लाख रुपए महीना घर खर्चे के लिए देता हूँ, 25,000 रुपये महीना वो बचाती है, और साल के आखिरी में 2 साल के अंदर मैं जनरल वो 5 लाख रुपए की परचेसिंग करने जाती है। मेरा तो हार्ड अर्न मनी है, 1 नंबर का ही है। अब मेरे वाइफ ने घर में उसके घर खर्चे से पैसा जो बचाया, न वो 1 है न 2 है, वो सर वो 3 नंबर है। और ये इंडस्ट्री चलती है 3 नंबर के ऊपर। नहीं, वो उसको 3 क्यों कह रहे हैं? वो तो हार्ड अर्न मनी। हाँ, पर वो 1 नंबर नहीं है ना, कि उसने तो मुझे तो बताया नहीं ना, उसने तो हर महीने जो खर्चे को दिया उसमें से बचाया पैसा है। आपके लिए 3 नंबर है। हाँ। मतलब सिस्टम के लिए तो 1 नंबर ही है ना वो। हाँ, सिस्टम के लिए तो 1 नंबर है। सिस्टम के लिए 1 नंबर है। अब हमने इसलिए दिया, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी 3 नंबर का पैसा है करके। एक्चुअली आपके लिए 3 नंबर नहीं है। हाँ। ये तो उनकी मतलब स्टाइल है। हाँ, नहीं, हमने 1 नंबर का पैसा दिया घर पे, बुक्स में लिखा 1 लाख घर खर्चे के लिए दिया घर में। हाँ। तो ये बैंकिंग के साथ है। मैं इस माध्यम का थोड़ा यूज़ करना चाहूँगा। आप सब बैंकर्स हैं साथ में। और फॉर्चुनेटली नेविल भाई और यहाँ पे परमानी जी बैठे हैं, इनके साथ तो हमको शंघाई जाने का मौका पड़ा। 7 दिन साथ में थे, काफ़ी बैंकिंग की चर्चा हुई। सर ये जो फोरक्लोजर चार्जेस है, ये जो है कि ये आपको अगर पहले, काफ़ी मनीष भाई भी यहाँ पे बोल रहे थे, ये चार्जेस के बारे में ना क्लैरिटी दी नहीं जाती है। और ये चार्जेस थोड़ा सा अननेचुरल लगता है कि अगर कोई पहले उसको सरेंडर करना चाहता है, चेंज करना चाहता है और उसको बदलना चाहता है। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि सरकार के साथ में जीजेसी एक बात करे कि हम लोग क्या करते थे पहले, मुझे भी पता नहीं था, भाई अपने को लोन लेना है, बढ़ाना है, तो अपन कोटेशन लेते 3। हम भी बैंक में 5 फाइल भेज देते, 5 अलग अलग बैंकों में, देखते कौन ज़्यादा देता, कौन रेट कम दिखता है। लेकिन जैसे हमने 5 बैंकों को फाइल दे दिया, वो बोलते कि आपकी क्रेडिट रेटिंग हिट करेंगी। सर इसका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप बोलते कि एक सेक्शन 8 कंपनी हो या कोई भी 10 जगह कोटेशन लेते, हमारा ग्राहक आता है, 10 जगह रेट देखता है, मजूरी देखता है, डिज़ाइन देखता है। हम भी देखना चाहते हैं कि हम किस बैंक से डील करें। हम एक सिमिलर फाइल बना के 5 बैंक के अंदर देते हैं, तो मेरा एडवाइजर बोले कि सर इससे आपका क्रेडिट रेटिंग कम हो जाता, क्योंकि आपने 5 जगह इंक्वायरी करी। यस, अब तो आंसर जरा सुन लीजिए सर, आपने Yes, बढ़िया sir. सवाल पूछा है जी। So your question basically is that when you make applications to multiple banks, why does it affect your credit rating, right? That's your basic Yeah. question. Right. Exactly, yes. Look, I mean, I think the sense is that why can't you get credit from your existing banker? Why are you going to multiple banks? That means somewhere there is a question on the credit aspect. So No, but this is not the solution actually. There should be parameter actually. let me finish. Let me complete. So my point being that there are ways and means, okay, to find out what are you being quoted by one bank or the other bank, right? So you don't instantly make application to 5 banks. You engage with them, you understand what the offering is. There's a preliminary discussion. Basis that you make an application. The fact that you're making application to 5 banks in one go somewhere sends an indication, not to me, but the credit rating system, that there is some question on the credit. So it's not like one bank is reducing it. It's the credit rating system which kind of looks at it in a negative light. So it is not to say that you can't find out what is an HDFC giving or an ICICI giving or a Yes Bank giving. You can. You have preliminary discussions with the relationship manager.
and basis what you hear and what you speak, you put your application up. Once you do that, there will be no reason for this to happen. You don't think there should be one parameter for all the procedures? Sir, credit can't be one parameter because human beings are different, behaviors are different, companies are different, No, no, but markets banks are. So you can't have one parameter for everyone because credit is such a, it's so behavioral dependent that you have to evaluate the company's behavior, you have to evaluate the promoter's behavior, you have to evaluate the market they exist in. So you can't have one parameter when it comes to credit. नहीं, आप जो बात कह रहे हो कि आप इंडिविजुअल जो भी आपके क्लाइंट होंगे उसको आप जज करोगे, उनको आप मॉनिटर करोगे, वो ठीक है, बट बैंकों का एक अपना एक स्टैंडर्ड पैरामीटर तो होना चाहिए ना कि इस पैरामीटर को अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आपको मिलेगा पैसा और नहीं कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे तो एक स्टैंडर्ड पैरामीटर होना चाहिए ना, मैं ये कह रहा हूँ। सर इंडिविजुअल कोई क्लाइंट है उसका अलग हो सकता है मामला, उसकी रेटिंग अलग हो सकती है, वह ठीक है, बट बैंकों का अपना जो सेल्फ मॉनिटरिंग पैरामीटर है, क्या आपको नहीं लगता कि वो एक होना चाहिए? I'll tell you why. Every bank will have its own strategy. Every bank has its own legacy. Every bank has its own risk management policy. So let's going a little far away, little away from India. So when you go abroad, you have you have a subprime lender, and you have a bank which doesn't get into subprime. Now, every bank may have their own strategy, their own view, their own recovery mechanism. Some bank will say, look, as a bank, I'm not comfortable with lending subprime, but some will say, I'm comfortable and I know how I can recover it also. So my point being that bank will have its own standard mechanisms in place, but the interpretation of the data that comes through will be every bank's own interpretation. आपने बोला कि आप क्यों मूव कर रहे थे बैंक के अंदर, क्यों कंफर्टेबल है? अगेन यहाँ पे बैंक की मैं नहीं पूछ रहा हूँ, सिस्टम पूछेगा। सिस्टम नहीं, मैं बताता हूँ तो क्यों मूव करना चाह रहे थे। अभी मैं मेरे एग्जांपल देता हूँ, वाशिम और बुल्ढाना में मुझे ब्रांच खोलना था। अब एक रूल ऐसा भी है सर मृत्युंजय जी, आपको पता है कि नहीं है, अगर मेरी सीसी लिमिट एक बैंक में है तो मैं दूसरे बैंक में अकाउंट भी नहीं खोल सकता, सिंपल बिगर सीसी के नहीं, सिंपल करंट अकाउंट भी नहीं खोल सकता। अभी मैंने वहाँ वाशिम और बुल्ढाना में इसलिए ओपन किया था मेरा शोरूम एक्सपांड करने के लिए, और वहाँ येस बैंक नहीं थी। अब मैं कैश वहाँ से डिपॉजिट नहीं कर सकता दूसरे बैंक में, क्योंकि जब मेरी एक जगह पे सीसी लिमिट है और फर्म मेरी एक ही है, तो मैं पैसे मुझे रोज़ कैरी करके लाना पड़ता था। अकोला में वाशिम से पैसा आता था, बुल्ढाना से पैसा आता था, या तो हवाला ढूंढना पड़ता था जो भी लीगल नहीं है। तो नहीं है, अच्छा मुझे पता था बोलेंगे। तो आप ऐसे सैकड़ों रीज़न है जिसकी वजह से आदमी बैंक बदलना चाहता है। फिर दूसरा प्रॉब्लम था एक बैंक में कि आप इससे ज़्यादा बैंक में पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं कौन बैंक है जो कस्टमर हमारा देहात का है और लेडीज़ 3 नंबर का पैसा लेके आती है। अब वो पैसा तो आता है, 3 नंबर का पैसा आ गया, तो इसलिए बैंक चेंज करना था। और बैंक चेंज करने गए तो क्रेडिट रेटिंग खराब हो रहा है, और बैंक अगर मैं नहीं खोलता हूँ, चेंज नहीं करता हूँ, तो मैं मेरे 2 ब्रांच के अंदर पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकता हूँ। तो ये मेरा एक एग्जाम्पल हो गया। यहाँ बैठे लोगों के डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। इस पर सर आपका टेक, यस क्विकली। I told you can have a preliminary discussion. Whoever can give you what you want, you should go with them. नहीं, थिंक ये है कि सर एक बैंक में मेरा सीसी लिमिट है तो मैं दूसरे बैंक में अकाउंट ही ओपन नहीं कर सकता। ये अभी रिसेंटली पास हुआ है लॉ। That is an RBI regulation, and that is something. So we should give chairman, we should give that representation because of our requirement we can open. ठीक है, यस, ये बड़ी बात है। अब प्रभु आप जरा हमें ये बताइए कि मतलब ज्वेलरी इंडस्ट्री बैंकों का किस तरह का फ्रेंड है? क्या बहुत फ्रेंडली रिलेशन है, या आपको ये लगता है क्योंकि आप सिस्टम के अंदर हैं, आप हमें ये बेटर बता पाएंगे कि जब आप डील करते हैं ज्वेलर्स के साथ में, इंडस्ट्री के साथ में, तो क्या वो बहुत स्मूथ डील होती है या बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आप फेस कर रहे हैं? आपके हिसाब से क्या चेंजेस होने चाहिए? Good afternoon everyone. Actually as a banker we are not facing any problem with any jewelers. The only problem is some of the jewelers are not aware of certain documents what to give to a banker, because if a jeweler is having almost 50 crores limit with any other bank, he is well aware of what all the documents, regulation, everything. But when you go to a small jeweler or manufacturer or exporter who's having about 2 crore 3 crore limit with a bank. चलो आप ये बता दो, क्योंकि बहुत सारे ज्वेलर भी होंगे, मैं ये मान रहा हूँ, और नहीं भी होंगे तो जीजेसी
ये वाला डिस्कशन अपने प्लेटफॉर्म पे डालेगी तो बहुत छोटे ज्वेलर भी सुनेंगे। आप बता दो, एक छोटा ज्वेलर जो बैंकों से 25-50-100 करोड़ का लोन लेना चाहता है, उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? एक इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से जाए। He should have balance sheets, financials, everything as per the if you take a small jeweler, mostly it will be a proprietor or a partnership, not a private limited company. So but banks are used to analyze the balance sheet or financial. नहीं, मैं बहुत सिंपल सवाल, बहुत इजी लैंग्वेज में आपसे समझना चाहता हूँ। Yeah, I'm telling. क्योंकि ये बात जीजेसी के बहुत सारे मेंबर हैं और दूर दराज बैठते हैं ज्वेलर, वो उनके लिए ये काम कर रहे हैं। मैं मान लीजिए मैं उनके बिहाफ पे पूछ रहा हूँ आपसे, मैं छोटा ज्वेलर हूँ, मुझे लोन चाहिए 50 करोड़ का, मुझे क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे आपको? अभी डील करते हैं, आप बैंकर हैं, मैं ज्वेलर हूँ, बताइए। Yeah, you have to give all the last 3 years financials. राइट, Your cash flow statement, all promoters details, कोई directors. पैरामीटर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कितना होना चाहिए, वो जरा बताइए थोड़ी। Yeah, that credit department will analyze it. ओके, It's a separate department. We all banks have their own separate set of rules and regulations approved by the board. So based on that, it will be analyzed. But basic documents are just financials ओके। and your GST returns. तो क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जल्दी मिल जाता है पैसा या बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं बैंकों के? If he is doing नहीं, अगर everything वो in सारा पैरामीटर फुलफिल कर रहा है तो मैं पूछ रहा हूँ। no, then it will not be any problem at all. You will get the loan. If the Okay. documents are pakka, you will Can get I- the loan. यस, कैन आई कम इन? व्हाट ही वाज ट्राइंग टू टेल यू इज कि जो प्रोप्राइटरी या स्मॉल पार्टनरशिप फर्म होती है ना, उनका अपना बैलेंस शीट बनाने का तरीका अलग रहता है, और बैंकर्स हैव अ स्पेसिफाइड सेट ऑफ फॉर्मेट इन विच दे वांट द बैलेंस शीट टू बी रिटन इन। जैसे प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड का होता है, उस रीत में उनको वो प्रेजेंट करने की उनकी अपेक्षा होती है, जो छोटे लोगों को शायद मालूम नहीं होता है, तो इसलिए वो आशीष मैच जी, नहीं हो ये पाता। आपने अच्छा बताया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग लगातार बैंकों से डील करते हैं, आप बड़े ज्वेलर हैं, छोटे ज्वेलर को थोड़ा गाइड करिए कि उनको कैसे ये फुलफिल करना चाहिए, उनको कैसे, मतलब ताकि उनको इजीली मिल जाए पैसा, भटकना ना पड़े। सबसे पहले उनको अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। क्या मानसिकता खराब है उनकी, आप ये कह रहे हैं? नहीं खराब मानसिकता खले, बिकॉज अपना नॉर्मली छोटा ज्वेलर या कोई भी फर्स्ट टाइम बैंक के पास जाता है तो बैंक वाले इंफॉर्मेशन मांगते हैं। तो ज्वेलर को ये आदत है अपना इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देने की आदत है, क्योंकि अपना अपना संभाल के रखो, प्राइवेट है, सीक्रेट है। हाँ, तो बाजू वालों को डॉक्टर नहीं के पास पता आया, नहीं। वो आप बीमारी छुपा नहीं सकते ना, बताना हाँ, तो पड़ेगा। यू हैव टू ट्रीट बैंकर एज योर डॉक्टर। उसको पूरा आपका जो कच्चा चिट्टा है जो ओपन है, ओपन करके दिखाना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल यू शो हिम, होगा तब तो दिखाएगा सर, जो भी है अपना, चिट्ठा तो पक्का भी हो सकता है अपना बैलेंस शीट का जो नंबर्स है वो दिखाना पड़ेगा आपको। एंड सेकेंडली, आपको किसी नॉट जस्ट द बैंकर, उसके पहले किसी अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिखा के उसको प्रॉपर फॉर्मेट में डाल के दिखाना पड़ेगा। तो बैंकर वो, अगर बैंकर फ्रेंच समझता है, आप इंग्लिश में लिख के दोगे उसको समझेगा नहीं। सो दोनों एक बार मैच करने के लिए एक्सटर्नल हेल्प लेना पड़ता है, और उसके लिए अपना पूरा पेपर वर्क उसको दिखाना पड़ता है। उसके लिए लोग डरते हैं, कतरते हैं, उससे दूर रहना पड़ेगा। मैं एक मृत्युंजय जी आपको बताना चाहूँगा जो मेरा एक्सपीरियंस है। आपके पास 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो 2 करोड़ का लोन भी मुश्किल है, और आपके पास 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 50 करोड़ का लोन भी आसानी से मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? आई एम टॉकिंग लीगली। मैं चाहता हूँ कि सेशन इजी हो, आप उसको टफ करते नहीं, मैं आपको नहीं टफ नहीं, मैं लोगों को जानकारी देना चाह रहा हूँ। ये इसलिए मिल जाता है कि अगर उनके डॉक्यूमेंट्स अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, सस्टेनेबिलिटी अच्छी है, और सबसे मेन होता है जो एक वर्ड सवेरे से मिस हो रहा है, आप रीपेमेंट कर सकते हैं कि नहीं, आपकी बैलेंस शीट बात करती है। क्योंकि इनका जो रिस्क डिपार्टमेंट है ना, उसका कोई आज तक किसी ने चेहरा देखा नहीं है। वहां आप बात नहीं करते, आप तो किसी को भी वो हाँ, तो वो जो होता है ना, वो आपके डॉक्यूमेंट से बात करते हैं। तो आपके डॉक्यूमेंट जो है ना, वो सेल्फ टॉकर्टी होना चाहिए। आपका डॉक्यूमेंट बात करेंगे, आप बात करेंगे, मैं बात करूंगा, तो किसी को कुछ भी कन्विंस कर लेंगे। राइट, चिराग आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? मैं एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे एसेट अवेलेबल है। अगर हम आरबीआई का डेटा देखें तो इंडस्ट्री को पूरे इंडिया का क्रेडिट में से सिर्फ 2.7% ही मिलता है। तो आप वैसे देखें तो सारे ज्वेलर सेल्फ फंडेड है,
ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्री को क्रेडिट अवेलेबल नहीं है. अगर 100 करोड़ की क्रेडिट इंडिया में सबको मिल रही है, सिर्फ 2.25 करोड़ की क्रेडिट ज्वेलरी इंडस्ट्री को मिल रही है. ठीक है, अब उसके अंदर हम डिबेट कर सकते हैं 2 लाख ज्वेलर है, 3 लाख ज्वेलर, तो आप इसके अंदर एक सिंपल मैथ लगा के देख लीजिए, 95% लोगों को क्रेडिट नहीं मिल रही. नहीं मिलती है, वो नहीं लेते हैं, दोनों में फर्क है. सर यहाँ पे मृत्युंजय जी 2 चीज़ है. एक है कि कुछ लोग नहीं चाहते, हम काफ़ी लोगों से मिलते, वो कहते हैं हम चाहते ही नहीं है. ठीक है, बट दूसरी बात है कि यहाँ पे इस इंडस्ट्री में मैसिव लैक ऑफ अवेयरनेस है कि क्यों क्रेडिट लेनी चाहिए. सबसे पहली चीज़. दूसरी बात, मैं बैंकर तो नहीं हूँ, पर कुछ साल मैंने बैंक में निकाले, तो एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि किसी भी बैंकर को एसेट बैक्ड क्रेडिट देने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. राइट, स्पेशली एन एसेट विच इज़ अ राइजिंग एसेट, तो बैंक के लिए ऑब्वियसली आसान हो जाती. बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है डॉक्यूमेंट मिसमैच. काफ़ी सारे ज्वेलर्स के पास गोल्ड है बट वो ऑन बुक्स नहीं है, ऑन बुक्स है तो कम बुक्स बराबर नहीं है. तो यहाँ पे सबसे बड़ी एजुकेशन इस चीज़ की रिक्वायर्ड है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. मतलब जब आप चिराग कह रहे हैं, मतलब खास करके जो छोटे ज्वेलर हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात ये है कि मतलब इन्होंने जैसे कहा कि अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस है. मतलब अगर आपको पैसा चाहिए बैंकों से और आपको ये लगता है कि बैंक आपको पैसा नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं है. और ये आपने बहुत सही बात कही कि ये राइजिंग एसेट है, तो इसके अगेंस्ट में आपको पैसा मिलने में दिक्कत नहीं आएगी. अब आप जरा बताइए सर, को ऐसे में भी दिक्कत है क्या? मैं चाहता हूँ कि ग्राउंड आप हमें ये फीडबैक बताएं कि क्या जब ज्वेलर आपके पास अप्रोच करते हैं, क्या वो झिझकते हैं कि नहीं लेता हूँ लोन, थोड़ा बहुत आगे बढ़ा, डॉक्यूमेंट दिखाया, फिर पीछे हट गया, रहने दो, कर लेंगे मैनेज? क्या फीडबैक है ग्राउंड से? Banker can only. फिर आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है? मतलब ज्वेलर आप चूँकि दोनों को डील करते हैं. Yeah. So मेरे एक्सपीरियंस में because I had responsible jewelry council, I always sees that whenever any jeweler, specifically smaller companies, when they want to apply for RGC membership, and we are asking them about, you have to go and ask your bank, even basic documents, they are kind of highly, furious. They feel, sir, इसके बिना हो जाएगा क्या? मेरा बैंक ये डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है. They don't want to talk about AML policies and all. And we says that AML policy, your ethical business practices and all, these are very, very basic thing. Eventually, you won't be able to even do minor business without this. So you have to be acquainted with this rules and regulations. आप कितने भी बड़े या छोटे ज्वेलर हो, पर आपके पास ये सब बेसिक चीज़, पॉलिसीज और वो सब आपने नहीं बनाई है, तो इवेंचुअली यू आर गोइंग टू गेट इनटू ट्रबल. नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिस्टम में इसलिए नहीं आना चाहते हैं कि सिस्टम में आएंगे तो सब उनका एक नंबर हो जाएगा, वो शो नहीं करना चाह रहे हैं. क्योंकि आप देखिए कि रूरल में बहुत सारा कैश में डील हो रही है, तमाम चीज़ें हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेड नहीं है, गोल्ड आपका किसी रेट का है, आप बेच किस रेट पे रहे हैं, मतलब तमाम तरह के हर्डल्स हैं. ये एक तरीके से आप जो बोल रहे हैं वो डेफिनेटली काफ़ी लोगों का कंसर्न है. और वो लोग जैसे जब लोग हमारे पास आते हैं तो हम उनको एग्जांपल दिखाते हैं जो लोग ऑलरेडी ये सब चीज़ सरपास करके आगे चले गए. सो बिकॉज यू वर नॉट देयर इन अ प्रीवियस सेशन, मिस्टर शुभंकर सेन ही वॉज टॉकिंग अबाउट के काफ़ी चीज़ ऐसी होगी जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगी. यू विल फील इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट यू विल हैव टू डू इट, बिकॉज आप अगर वो करोगे नहीं तो यू विल नेवर बी एबल टू रेज योर बार टू नेक्स्ट लेवल. And that goes same with him because, I have been trying to talk to a lot of major retailers in India that you come and join RJC membership. So Suvankar is the first one to join RJC membership at the group level. And he clearly says that, नहीं, बड़े ज्वेलर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है. बड़े ज्वेलर को आपको समझाना भी नहीं पड़ता है, उनको सब रूल रेगुलेशन, उनके अपने सीए होते हैं, सब सारी चीज़ें अकाउंटिंग होती है, उनको दिक्कत नहीं आती. दिक्कत आती है छोटे ज्वेलर को. अब जरा आप बताइए सर, अभी जैसे चिराग ने बात कही कि जो ज्वेलरी सेक्टर का जो क्रेडिट ग्रोथ है वो बहुत कम है, 3% के आसपास आपने बताया है ना. तो क्या बैंक ये नहीं चाहता है कि आप ज़्यादा पैसे दें, ज्वेलर्स को लोन दें? मतलब बैंकों का अप्रोच क्या बहुत पॉजिटिव है, या अगर ज्वेलर अप्रोच नहीं कर रहा है तो आप लोग भी रहते चलो बाकी सेक्टर में जा रहा है पैसा, रहने दो ज्वेलर को? Yeah, I think banks are very keen to do business. I think the fact that we are here itself is evidence that, we want to be engaged with the gems and jewelry industry. I think there are, and I think it's a very pertinent question what you are asking, because look, there are two things here. You really need a bank if you want to grow your business.
if you're happy with what you have and you're very happy that your inventory has gone up from, whatever price to today, 75,000, 76,000, you're content with that and you're just kind of revolving that inventory, then there is no problem. You don't need a bank, quite honestly. The second is, where does the bank come in? Where you really want to expand, right? Now, what is the benefit of a bank? And like I think what Chirag said, I think there's a lack of understanding and awareness of why a bank. मैं यही पूछ रहा हूँ कि क्या नहीं मैं यही आप जो कह रहे हैं मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि बैंकों का क्या प्रोएक्टिव अप्रोच है टुवर्ड्स ज्वेलर कि आप उसको अवेयर करें, बताएं कि नहीं आप लोन लो अपने एरिया के ज्वेलर को, ताकि वो कंफर्टेबल फील करे आपके साथ डील करने में. So see, the thing is, there is obviously something that we reach. So we are all, listed companies. We have to grow quarter on quarter, right? So business is something all banks want, right? It's not that and business for us comes from, we want to extend credit and get it back, right? That's the idea. So there is a lot of analysis that goes in a company, but a good company, definitely every bank would want to lend money to them. That's not a problem. But why I'm saying this is what we have said, that many jewelers do not want credit also because they are very happy with what they are getting. क्रेडिट आप 2 डॉक्यूमेंट कम मांगो आएंगे आपके पास. But if you don't need it, we should not be giving it to you, because then you're creating another problem in the system, right? Yes. So we should only give it to you if you need it. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही होने वाला आपसे होने वाला है सर, कि जब आप ज्वेलर्स के साथ डील करते हैं क्या मन में कोई फियर होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ. हाँ नहीं आपको फियर उनको तो फियर नहीं, आप तो पैसे दे रहे हैं उनको, है ना? I would like to add something. See, bankers को financial statement as per financial year चाहिए. In the country, most of the jewelers still maintain traditional way of bookkeeping, which is not acceptable in the financial system. So people doesn't know proper way to record their sales or their financials as per the financial which bankers need. That has to be corrected first. So once that is corrected, if they want to grow, they'll obviously get the funding. Okay. चिराग आप जरा बताइए मैं 3 पॉइंट. Just to add into this, because we are talking here in India, but I have seen lot of banks, those who are international banks, we have lot of international members across the globe, and lot of international banks basically right now, those who are having major exposure in gems and jewelry industry, whenever anybody is going to even open an account, they always say, they ask in one of the question, are you a member of Responsible Jewelry Council? That clearly means that even though they are not mandating or enforcing it, they are clearly messaging it that if you want to be in a good list, you have to do the right thing, which are voluntarily, which are available in market. So banks are clearly kind of pointing out people, companies to in the right direction. मेरा इस पे ऑब्जेक्शन नहीं है, मतलब मैं काउंटर क्वेश्चन ही है, मतलब बैंकर इसका ज़्यादा बेटर जवाब दे पाएंगे. कई बार ये होता है कि आपको लगता है कि बड़े शहरों में Tier 1, Tier 2 में वहाँ पे बैंकों की डील ज्वेलर के साथ बहुत अच्छे से हो जाती है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती है. मैं बात उन ज्वेलर्स के लिए कर रहा हूँ, मैं बात उन GJC के उन मेंबर्स के लिए कर रहा हूँ जो यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर बैठा है, एक छोटी जगह में बैठा है, जहाँ पे बैंकिंग सिस्टम बहुत रोबस्ट नहीं है, बहुत मजबूत नहीं है. वहाँ पर कैसे ये जो ट्रेडिंग डील है या जो बातचीत है वो कैसे स्मूथ हो, उसको लेकर के क्या पहल होनी चाहिए ज्वेलर्स की तरफ से और बैंकर्स की तरफ से? आप में से कोई आप हाँ. I'll like to give you an example in case of exporters, not on the domestic side. To get a duty-free gold, you should be a member of GJEPC. Duty-free gold? Yes. कहाँ से? दुबई कहाँ से? No, duty-free gold. Duty-free gold. For export purpose. अच्छा एक्सपोर्ट करना है तो. एक्सपोर्ट करना, वो बैंक से लेके मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए GJEPC membership is must. Okay. So no bankers is allowing to enroll who are not a member of GJEPC. Likewise, it has been changed. It is not required. I got the export license, everything without GJPC, and I am going to start export without GJPC. Oh, even GJC member is sufficient. But we insist on GJPC membership. क्यों? Why? Why you are insisting? Because it's not. The country is losing the revenue. How? So country is losing, because if you are importing for domestic purpose, 15% duty you have to pay. That is not there.
So what he means is that jewelers has to be member under any of पहले the ऐसा apex होता था body. सर, Any of मुझे the पहले apex ऐसा body. होता था कि आप कोई रिकॉग्नाइज ट्रेड बॉडी Yes, के मेंबर yes. होने चाहिए, तो तभी जीजेपीसी। रिकॉग्नाइज्ड बॉडी तो पहले ये that था will- कि एक्सपोर्ट के लिए वो था, बॉडी नहीं थी, अब चूंकि जीजेसी है अभी मैं- रिकॉग्नाइज्ड। No, what I am हमारी जीत थी और हम जीजेसी के तरीके से ही एक्सपोर्ट करेंगे। हाँ, जीजेसी के इस पे कर लेंगे। एक बार तालियां बजाया जाए जोर से कि विदाउट जीजेपीसी के भी जीजेसी का भी मेंबर रहने कर ये सकती। जो आपके मेंबर हैं उनको ही जानना मेरे ख्याल से मालूम होगा उनको, और उनको जानकारी होनी चाहिए कि आप अगर जीजेपीसी का मेंबर नहीं भी हैं तो जीजेसी के मेंबर से भी आप कर सकते हैं। अब मैं चिराग आपसे जानना चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि इस पैनल से कुछ ऐसी बात निकल कर जाए ताकि इस पैनल को सुनने के बाद जो हमारे छोटे ज्वेलर हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़े बैंकों से डील करने में। 3 ऐसी बातें जो आपको लगता है कि छोटे ज्वेलर्स को देखना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए, जिससे कि उसको बैंकों से आसानी से लोन मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। क्या करना चाहिए? मतलब उनके दुखती लग पे हाथ मत रखिए आपकी, भाई अब वो पूरा डिटेल बता दें आप। नहीं पूरा डिटेल मैं कहूँगा सबसे पहले एक अच्छा सीए रखिए, अच्छा, जो आपकी सारी बुक्स है हाँ। उसको बराबर करेगा। आप मुझे कुछ साल पहले, जॉनी शायद इधर है नहीं, पर मैं एक छोटे शहर में गया हुआ था मार्केट अंडरस्टैंड करने के लिए, और ये डीमोनेटाइजेशन के जस्ट बात थी, और एक ज्वेलर है जो वहाँ के बहुत ही रेप्यूटेड ज्वेलर है, उनसे मैं मिला तो मुझे बता रहे थे यार मैं सेल तो करता हूँ बट कभी कुछ बुक्स बनाए नहीं, कुछ नहीं, अब डर लग रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने। और फिर जॉनी उस टाइम पे स्कोशिया बैंक में हुआ करता था, मैंने उसको फ़ोन लगाया। तो एक चीज़ है कि सबसे पहली चीज़ एक अच्छा अकाउंटेंट, एक अच्छा सीए रखे जो आपको ये सारी चीज़ें करेगा। दूसरी बात जो नेविल ने की, अपने बैंक से एंगेज करने की शुरुआत कीजिए। ठीक है, आज प्रॉब्लम ये हो जाता है कि बैंक जो ये है ज्वेलर्स है, ठीक है, ज़्यादातर उनको ये लगता है कि लोन एक बुरी चीज़ है, बट बात वो नहीं है। लोन बुरी चीज नहीं है। आप उसको किस तरह से यूज करते हैं वो एक लोन लेके आप भाग इम्पोर्टेंट है। जाओ, कोई बुरी चीज नहीं है, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा है ना? बट वो जैसे मृत्युंजय आपने कहा कि 10 करोड़ का लेके भाग जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, आप कितना लेके भाग रहे हो उसके ऊपर है। तो दूसरी बात है बैंक के साथ एंगेजमेंट शुरू कीजिए, ठीक है, और बैंकों के पास अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए जो दुनिया भर में प्रूवन है। उस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेटल लोन है। आज हमारा मेटल लोन अगर आप लास्ट 10 साल और नेविल इसके अंदर ऐड कर सकता है, 120-140 टन के ऊपर गया नहीं, ये उसी के अंदर साइकिल में बढ़ रहा है। हाँ, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। जबकि हमारी ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री भी एक्सपैंड हो रही है, ये नहीं हो रहा है। इंडस्ट्री एक्सपैंड हो रही है। तो ये मैं 2 चीज़ कहूँगा, एक अच्छा सीए रखे और दूसरे अपने बैंक के साथ एंगेज करने की शुरुआत कीजिए। अच्छा आशीष जी, आप चूंकि आप तो डील करते हैं बैंकों से, आप जरा बताइए अभी जो रूल रेगुलेशन हैं बैंकों के, आपको लगता है कि उसमें कुछ चेंजेज होने चाहिए, उसको थोड़ा और इजी बनाना चाहिए ताकि आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो और आसानी से आप ले पाए? जो करंट रूल रेगुलेशन है। ये क्वेश्चन पे आऊँगा मैं, लेकिन उसके पहले इनको जो आपने क्वेश्चन कहा था उसका मैं थोड़ा जवाब देना चाहूँगा। आपने जो 2-3 चीज़ें कही, चार्टर्ड अकाउंटेंट लीजिए, ये कीजिए, उसके पहले सबसे बेसिक चीज़, आप बैंकर्स विल अग्री विद मी, किसके लिए जाते हैं? मोस्ट ऑफ द बैंक प्रोडक्ट्स आर देयर फॉर टेकिंग केयर ऑफ योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, बराबर? ये सब ज्वेलर नहीं समझ पाते। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे निकालेंगे? मेरा ये प्रोजेक्ट का प्लान है, मेरा 2 कस्टमर है, उसकी जगह 4 कस्टमर है, 4 कस्टमर को मेरे को 4 किलो की जगह 8 किलो का माल बेचना है, इसके लिए मुझे 8 किलो बनाना है, मेरे पास 5 किलो है, 3 किलो मुझे कम पड़ रहा है। ये रिक्वायरमेंट, ये प्लान आपके दिमाग में पेपर पे होना चाहिए। देन उसके बाद स्टार्ट होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट को, लोग उनको क्या चाहिए। वो 3 किलो का गैप अगर आप बैंकर को प्रूव करके दिखाओगे कि ये मेरा जेन्युइन वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, मेरे पास 10 किलो का कस्टमर है लेकिन मेरे पास 6 किलो है, 4 किलो माल कम पड़ रहा है, अच्छा, और मैं इतने सालों से 6 किलो का काम कर रहा हूँ, इसमें मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, ये अगर केस अप्रूव कर देंगे तो कोई भी बैंकर हंसी हंसी उनको पैसा दे देगा। सो यू हैव टू बी क्लियर इन योर माइंड कि आपके मन में क्या प्रोजेक्ट है, उसके लिए पैसा कहाँ कम पड़ रहा है। मुझे पैसा चाहिए, पैसा मिलेगा, लेकिन उसका मैं विनियोग कहाँ करूँगा, क्यों मेरे को कम पड़ रहा है पैसा। ये जब तक आप प्रूव नहीं करोगे तब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट और बाकी सब लेने के बावजूद कोई बैंकर आपको पैसा नहीं देगा। ये बहुत बहुत बड़ी बात आपने बताई है। नितिन जी, अब आप बताइए, आप अकोला रहते हैं, बैंकों से डील करते हैं, आप तो बड़े ज्वेलर हैं जो, लेकिन आपके आसपास में जो छोटे ज्वेलर हैं, क्या वो ये प्रैक्टिस करते हैं जो बात आशीष जी कह रहे हैं या फिर जो बात चिराग कह रहे हैं,
उनको अवेयर कर रहे हैं आप? या अपना जीजेसी का जो एक लाभम प्रोग्राम है उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट साथ में रहते हैं और उसके अंदर हम ये बहुत एम्फेसाइज करते हैं कि आपको बुक्स कैसी होना चाहिए, क्योंकि ये कैसी होनी जैसा चाहिए बताइए? हाँ जैसा कैसी होनी चाहिए books? जैसा मैं बताता हूँ बुक्स का जो आशीष जी ने बोला उसी को मैं आगे ले जाता हूँ कि आपकी बैलेंस शीट रीपेमेंट कर सकती है क्या। होता क्या है कि 50 लाख कमाई है और 10 लाख बुक्स में बताएंगे तो बुक्स दिखाती है कि आप लोन ले ही नहीं सकते क्योंकि आपको पेमेंट करने का है। दूसरा, जितना टर्नओवर है पूरा लेकिन अगर 50 बुक्स में लाख दिखा होगा दिया तो फिर टैक्स लायबिलिटी बढ़ जैसे जाएगी। टैक्स लायबिलिटी आएंगे, आपको खर्चे बताने के भी तरीके बहुत है। टैक्स प्लानिंग चोरी का करना तरीका जरूरी बता रहे हो है, आप। टैक्स प्लानिंग करने का बता रहा हूँ। आप खर्चे जो हो रहे हैं आपके उसको भी फॉर अकाउंट करिए तो आपकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट भी दिखेगा, आपका एक्सपेंडिचर भी दिखेगा, आपकी बैलेंस शीट उसके अंदर मजबूत हो जाएंगी। नहीं, मैं ज्वेलर के बिहाफ मैं ज्वेलर्स की बात कर रहा हूँ। मैं ज्वेलर नहीं हूँ, लेकिन मैं ज्वेलर के मन की बात जानता हूँ, समझता हूँ। मैं उनके बिहाफ पे आपसे पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे ज्वेलर इसलिए डरते हैं बुक्स में कि उनको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं वो अकाउंट में आ जाएंगी, मतलब वो पेपर पे आ जाएगा, बुक्स में आ जाएगा, वो छुपाना मतलब वो नहीं चाहते हैं कि मैं उसको शो करूँ। तो इसका कोई रास्ता है क्या? नहीं, वो डरते हैं कि भाई मैं उन्होंने system में आ बिजनेस जाऊँ। बंद करके घर पे बैठ जाना चाहिए। घर पे? हाँ, अगर आपको बढ़ाना ही नहीं है, आपको शो ही नहीं करना, आपकी डिजायर ही नहीं है, आपको भूख ही नहीं है, तो आपके मुंह में आके कोई निवाला थोड़ी जबरदस्ती डालेगा। आप डिजायर बताएंगे तो आपको कोई चीज मिलेगी रास्ता ना। बताओ ना जो आप तो अपनाते रास्ता हो। तो सिंपल है, बुक्स आपकी अच्छी होना चाहिए। और अच्छी का मतलब ये होना चाहिए कि आपके बुक्स के अंदर रिक्वायरमेंट दिखना भी चाहिए। और आपका जो सी होता है बताता है कि जो आप ओरली बोलते हैं उसको बुक्स में कैसे रखे। आप शोरूम का अंदर एक्सपांशन कर रहे हैं, आप नया शोरूम खोल रहे हैं, आप बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, आपका बेटा बिजनेस में आ गया, वो कुछ बाएं दाएं रेवेन्यू वाला ऐड करना idea चाहता बताओ, है, कुछ बाएं दाएं वाला आइडिया जो आप करते हो। वो अकेले में बताएंगे सर। सर इसके अलावा मेरे एक दो तीन चीज़ें हैं। आज बैंक का फोरम है तो सर अभी होता यह है कि आप लोग सब गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक है। अभी ओवरऑल देखा है हमने कि 365 दिन में से करीब करीब 125 दिन बैंक बंद होती है। शनिवार रविवार निकाल लीजिए, गांधी जयंती निकाल लीजिए, काम छुट्टियाँ करवाना कितने चाह रहे हैं, छुट्टी करने तो दो ना। नहीं तो मेरा उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है, आप और छुट्टी ज़्यादा करिए, 5 डेज 4 डेज वीक करिए। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना आ गया है, आरटीजीएस का टाइमिंग उन्होंने पहले बढ़ाया था, फिर उसके अंदर एक शाम के बाद में एक रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है। संडे को सारे शोरूम ओपन रहते हैं। एक ज़माना था जब बंद रहता है, जब टॉकीज मॉल कुछ बंद नहीं होता है। तो पैसा जब कस्टमर को बेचने आता है सामान, तो अभी तो कस्टमर के समझ में नहीं आता, उससे हम 2 लाख तक ले सकते हैं और अगर अड़ी अड़चन में 2 ग्राम से ऊपर बेचने आता है तो हम उसको पैसा दे नहीं सकते। तो गिराहक को पहले गलत फहमी है कि ज्वेलर्स लेता तो बहुत जोरों से पैसा और देने में हिचकिचाता है। अब उसको बोलते हैं कि तू बैठ अभी बैंक से देंगे, तो बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए कई बार 6 घंटे 8 घंटे 5 घंटे लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हडल है। और अधिकतर बिजनेस जो ऑफिसर होते हैं वो संडे के दिन ही आते थे, कोई भी, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, या कोई चपरासी हो, उसको छुट्टी संडे को होती है और संडे को कोई ट्रांजैक्शन कर नहीं पाता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप अभी जब डिजिटल पेमेंट स्टार्ट हो गया है, आज हम गूगल पेमेंट लेते हैं या यूपीआई से करते हैं, उसमें प्राइवेट कैन डू पेमेंट। आज मैं खंडेलवाल ज्वेलर्स करके यूपीआई से किसी को पेमेंट ही दे नहीं सकता। अब मेरा कस्टमर बोलता है हॉस्पिटल में मेरा कोई भर्ती है, मेरा ट्रक खराब हो गया, मैं रास्ते में खड़ा हूँ, या उसको जो भी डिफिकल्टी है हम उसको मदद नहीं कर सकते हैं। तो जब हम आपका ह्यूमन एरर उसके अंदर है नहीं, कोई उसमें टच होने वाला नहीं है, मेरे बैंक में पैसा होगा तो मैं इनको देने वाला हूँ, तो उसके लिए अब 24/7 क्यों अवेलेबल नहीं है? Yes. एटीएम आपका दे रहा है 24/7 पैसा, Yes, ये तो अच्छा- हम अच्छा। अपनी इच्छा से क्यों नहीं दे बढ़िया, सकते ये पूरा बहुत बिजनेस? अच्छा सवाल है सर, क्या रिप्लाई क्या है इसका? Honestly, I don't have an answer for this right now. So, but what? RBI. But I think what you are referring to, that yes, adding beneficiaries on a non-working day, there are definitely certain amount of glitches there, and I understand from a business point there's a problem. But what I can say, there is a constant, work in progress improvement that I think even the regulators doing, even banks are doing. There's talk of, banking on Sundays and all that stuff. So let's see how that goes. But point noted. But I am not the person who can answer that. Why is it ठीक what है, it is? एक सवाल नितिन जी के पास और है, मैं आऊँगा आपके पास नितिन जी, लेकिन आप एक बैंकर, चूंकि अभी चिराग ने और आशीष जी ने जो सुझाव दिए ज्वेलर्स के लिए कि आपको क्या करना है, मतलब आपको कैसे अपना बुक्स बढ़िया बनाना है ताकि आपको लोन में दिक्कत ना आए। लेकिन मैं जानना चाहूँ कि आप लोग अगर बड़े शहरों के जो बैंकर हैं उनको रूल रेगुलेशन मालूम है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या छोटी जगहों पर भी जो बैंकर हैं उनको ज्वेलरी इंडस्ट्री को लोन देना है, इसके सारे रूल, कई बार दिक्कत होती है बैंक में आप जाओ वो ठीक से बता नहीं पाते हैं, है ना, वो बताते नहीं है या उनको मालूम नहीं होता है, तो क्या ये डिफ़िकल्टीज़ हैं, इसको कैसे एड्रेस किया जाए? As a banker, we can't go and educate everybody. So there is
GJC नहीं, एजुकेट की बात नहीं, मैं अगर अप्रोच कर रहा हूँ अपने अपने मैं जहाँ रहता हूँ, अगर मैं वहाँ के किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैंकों को अप्रोच कर रहा हूँ, उनको नहीं मालूम कि भाई ज्वेलरी के लिए क्या रूल रेगुलेशन है, कैसे लोन देना है, उसको कैसे ठीक किया जाए, बहुत दिक्कत आती है इस तरह की। No, bankers, all the bankers, branch heads will be aware how to get a loan of working अगर capital होते हैं loan. सर, आपका टेक। Yeah, I agree with him. I think if you walk into a branch, they will be able to respond, and they may even get you onto someone who's specialist for that product. तो वो should not be a problem. नहीं, But you need to walk into ये a branch. प्रॉब्लम पता नहीं आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। मैं ये अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि मैं कई बार जब जाता हूँ ग्राउंड रिपोर्ट करने रूरल में, तो वो लोग बताते हैं कि मैं बैंक 4 बार गया, 4 बार अलग अलग नियम कानून बताए, पहले ये डॉक्यूमेंट मांगा, फिर मैं लेके गया, फिर दूसरा डॉक्यूमेंट मांगा, तो कई बार उनको भी ठीक तरीके से मालूम नहीं होती है ये बात। खैर ठीक है, आप कह रहे हैं कि नहीं है तो यही नहीं होना भी चाहिए, तभी ज्वेलर आपके पास आएंगे, तो अल्टीमेटली आपको रूल रेगुलेशन तो फॉलो करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था सर आपका? सर GECL और GECL के अंदर क्रेडिट गोज टू जेम ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल, क्योंकि स्ट्रेस इंडस्ट्री के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सब इंडस्ट्री को बेनिफिट नहीं दे सकते कोविड में, थैंकफुल टू अविनाश जी, अशोक भाई, कि हमने 24 घंटे में गवर्नमेंट को रिपोर्ट बना के दिया कि स्ट्रेस इंडस्ट्री में जेम ज्वेलरी काउंसिल भी आती है, आशीष भाई भी थे, हम सब लोगों ने किया, और 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर करके ये बताया कि इंडस्ट्री भी इसके अंदर है। उसके बाद में गवर्नमेंट ने सर हमको GECL दिया। अब GECL का जो पैसा आता है, पहले 10% आया, फिर 20% आया, फिर 30% आया और 3 लाख, अब उसकी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया विदाउट कोलैटरल। लेकिन जब हम बैंक चेंज कर रहे हैं तो अभी ये सुनने में आया कि GECL को आप कोलैटरल मांग रहे करके, जबकि ये क्लियर RBI की गाइडलाइन है कि GECL के अंदर कोलैटरल नहीं रिक्वायर्ड है करके, लेकिन बैंक चेंज करते समय सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी गारंटी ले रही है और वो आपको पैसे की रिस्क दे रही है, तो वो कोलैटरल क्यों मांगा जा रहा है उसके अंदर? जवाब सर। So I think if you can represent this to IBBA or IBA that this is happening. But this is a fact ना? I would not know this, but Anybody is aware? Any banker? कुमार भाई? हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टिंग में 100% गारंटी दी थी, मतलब हाँ। लेकिन बाद में क्योंकि कलेक्ट जो है बैंकों को ही करना था, इसलिए सेंट्रल बैंक ने 75% करी अपने पास। सवाल वो नहीं है, अभी तो गारंटी नहीं ले रहे, कोलैटरल मांग रहे GECL के लिए। 25%, they can ask only 25% of that amount. 30 जून को पॉलिसी RBI की पॉलिसी चेंज हुई, उसके बाद कोलेटरल मांगना शुरू किया। पर ये संसद में डिक्लेयर, मेरा ये ऑब्जेक्शन है, ये संसद में बोला हुआ है कि कोलैटरल लगेगा नहीं, और ऑल ऑफ सडन इसको किया तो विदाउट संसद को इन्फॉर्म कर ये चेंज किया है। 25%, ये मेरा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है। They can ask 25% of that amount. सर सवाल 1% भी क्यों कटेगा? जब निर्मला जी, कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि GECL विदाउट कोलैटरल मिलेगा, ऑल ऑफ सडन क्यों चेंज हुआ? ये बात सही। मॉर्गेज डीड पे साइन हो रहा है उसके लिए। यही मेरा कहना है कि ये चेयरमैन सर, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इतना अच्छा आपने ऑर्गेनाइज किया, और रवि जी और सनी ढोलकिया इन्होंने सब किया। हमको सर एक यहाँ से डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए कि ऐसा ऐसा फोरम हुआ, ये लोग थे और ये डिफिकल्टी आई है, क्योंकि बहुत सारे डिफिकल्टी का। और देखिए निविल जी ने नहीं है तो नहीं आंसर दिया, गोलमाल नहीं दिया, उन्होंने बताया इनके हाथ में नहीं है, ये RBI के हाथ में। तो एक यहाँ से हमारा एक जाना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम है, और ये स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट है। बिल्कुल। अब हाँ, यस संजय जी। नो कम्प्लीटली राइट है। जो बाकी 2 हमारे सेशंस हुए थे उसके अंदर भी काफ़ी पॉइंट्स निकले थे, इसको एक बार एक्यूमुलेट करके IBBA, फाइनेंस मिनिस्ट्री और हमारे पर कॉमर्स मिनिस्ट्री भी लगती है, तो हम तीनों को एक बार करेंगे और इसके ऊपर एक उनके साथ बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो GECL की बात आई है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो मांग रहे हैं। मैंने भी उस टाइम पर, जैसे आप बात हुई थी, बैंक से लिया था, मुझे अभी तक बैंक का ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है। चेंज करेंगे तो चेंज करे तो होगी प्रॉब्लम से। मेरा जो चेंज करना ही नहीं है बैंक, तो क्या बोल रहे हैं, है ना? अच्छा, एक मेरा भी आप मतलब आप सुझाव है, जो अभी आपने कहा कि इसको सब आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे और भेजेंगे, उसमें मुझे लगता है कि जो आपके मेंबर हैं, जो छोटे ज्वेलर हैं खास करके, या जो भी ज्वेलर हैं, उनके लिए एक FAQ आप तैयार करें। जैसे अभी हमने बैंकों से लोन लेना, एक सिंपल हमें कि भाई अगर आपको बैंकों से लोन लेना है तो आपको क्या क्या करना है, उसके लिए एक FAQ होना चाहिए, ताकि आपके मेंबर्स बहुत सारे होंगे जो लोन लेना चाहते होंगे, नहीं ले पा रहे हैं। हाँ, तो उनके लिए ये बड़ा फ़ायदेमंद होगा कि बैंकर्स का क्या व्यू है, एक्सपर्ट्स क्या सुझाव दे रहे हैं। तो एक FAQ होगा तो उनको बहुत आसानी होगी समझने में, उसको फॉलो करने में। सो बिल्कुल परफेक्ट है। सनी एंड रवि जी विल गेटिंग बैक 15 दिन के अंदर वी विल
कैट और आपको भी भेजेंगे ताकि आप भी अपने बिल्कुल नहीं, मैं ये डिबेट में ले सकें। हमारे लिए शो का टॉपिक है छोटे ज्वेलर के लिए। भाई छोटे ज्वेलर अगर लोन लेना चाहते हैं तो क्या करें? हाँ। इसके ऊपर हम बढ़िया शो बना सकते Done, हैं कि done. क्या। अच्छा अब आशीष जी, ये तो ठीक है, छोटे ज्वेलर की बात हमने कर ली, उनके ऊपर बहुत सारे सवाल भी खड़े कर दिए। ये बड़े ज्वेलर जो घपला करके भाग जाते हैं, वहाँ पे क्या लूप हॉल होता है? ये मैं आंसर जो ट्रिपल ए रेटिंग होता है। ट्रिपल नहीं वो ये उसमें क्या कहीं कोई लूप हॉल होता है? कैसे मतलब नहीं, पकड़ में जिसको नहीं आता, निकल जिसको मिसचिफ करना है वो स्टील में भी कर सकता है, ज्वेलरी में कर सकता है, बैंक में भी कर सकता है, तो इट इज़ इंडिविजुअल्स केस। बट जब माइक हाथ में आया है तो मेरा एक क्वेश्चन था आपके थ्रू, मैं चिराग भाई को पूछना चाहता था, बिकॉज ही ट्रैवल्स अक्रॉस एशिया। तो ऐसा कोई आपने देखा है कि जहाँ पे बैंकिंग का जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री, अभी हम तो प्लेन वैनिला वर्किंग कैपिटल लिमिट देखते हैं या GML देखते हैं, इसके अलावा कुछ ऐसा है कि बैंकिंग का इस्तेमाल जेम ज्वेलरी में लोग करते हैं आउट ऑफ इंडिया? आई मीन कहीं नहीं, मोस्टली अगर आप कोई भी बड़े ज्वेलर या मैन्युफैक्चरर को ग्लोबली देख ले, स्पेशली एशिया में, सो एसेंशियली आइदर मेटल लोन वो यूज़ करते हैं, बट ज़्यादातर लोग मेटल लोन यूज़ करते हैं क्योंकि वो चीपर वे ऑफ फाइनेंसिंग हो जाता है, या फिर कैश क्रेडिट जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। हाँ, कुछ देशों में एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है कि प्राइवेट कंपनीज है जिनके माइंस के साथ टाइप्स है, वो ज्वेलर्स को लीज करते हैं। तो जैसे कुछ बड़ी कंपनी है जैसे मॉनिटरी मेटल करके है जो यूएस में है, वो एशिया में और यूएस में क्या करती है कि जैसे अगर माइंस है तो माइंस के साथ उन्होंने टाई अप कर लिया है, माइंस से वो गोल्ड ले लेते हैं और वो बैंक से सस्ता क्रेडिट आपको प्रोवाइड करते हैं। बट इट इज़ वो चीज़ इंडिया में वर्क करना बहुत डिफिकल्ट है, नेविल एक्चुअली ऐड कर पाएंगे क्योंकि इंडिया में आई थिंक मेटल लोन इस तरह से बनाया गया है कि बैंक टू बैंक ही वो डील हो सकता है और प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व नहीं है। बट अदरवाइज मोस्टली अगर आप ग्लोबली देखें तो लीजिंग है अवेलेबल या आउटराइट क्रेडिट है। अच्छा आशीष जी, क्रेडिट रेट ठीक है या आपको लगता है कुछ कम करना चाहिए ज्वेलर्स के लिए? कम होना चाहिए, बट सिंस मॉर्निंग 2 सेशन हुए एंड दे हैव प्रॉमिस्ड कि जो सब इंडस्ट्री को लगता है वही इंटरेस्ट हमको लगता है। बट एक सिंस बोथ ऑफ यू आर इन गोल्ड मेटल एंड कुमार जी इज ऑल्सो हियर, so is there a chance that you can recommend to Reserve Bank of India that gold metal loans be turned into a perpetual kind of thing, what you have in Dubai and other places, because unnecessarily it's putting pressure on imports are getting हाँ, मैं ये बोल रहा था कि आपका भी additionally बेनिफिट added. है, डॉक्यूमेंट भी बचेगा और उसकी वजह से लोग इससे दूर गए। तो अगर इसको परपेचुअल किया, भाई आपने मेटल ले लिया तो आप मार्केट से लेते रहो, अभी अननेसेसरी ज़बरदस्ती लेना पड़ता है। 180 डेज हो गए तो रिक्वायर्ड है या नहीं है, वो अगेन ले दो, उसके अंदर बहुत ट्रांजेक्शन होता है। So I think, and I think everybody would know here, GML is a subsidized cost of borrowing, right? So today, when you borrow INR at what 8, 9, 9.5, 10, GML you get much lower than that. Now the risk that we run as a system is that gets misused, right? Someone sells jewelry, generates INR, so you're generating INR at the cost of maybe 3 or 4%, and that finds way into other assets. So eventually you create a systemic risk in the country, right? So you will create bubbles, asset bubbles will get created. No, the point what one is saying here is that if I keep it to perpetuity, right? What can happen is when I know you. Yeah, but when you sell gold, you generate INR, right? When you generate that INR, what the product says, you need to pay back to the bank and close it, right? But what perpetuity recommends is that you've got the INR. Now from this INR, I'll buy gold, right? That is the idea. Correct. So typically, what it means is if your cycle is say for 3 or 4 months, then one has to keep monitoring that is this money going into gold or not going into gold. Yes. And what if it finds its way into equity or property, and that's how asset bubbles will be created, and that will create a risk
Yes. to the system. Different I angle. think most of the countries GML is a fixed product with certain amount of maturity, and I think जो नेविल ने बात की है एक्चुअली आप अगर बैंकर से ऑफ द रिकॉर्ड बात करो तो ये सबसे बड़ा रिस्क बैंक कहते हैं कि ज्वेलर्स को अगर हमने GML दिया है हमें ये पता नहीं है कि ये जो गोल्ड है वो एक्चुअल यूज हो रहा है कि इस हैज फाउंड वे इनटू रियल एस्टेट, ये सबसे बड़ा रिस्क है एक्चुअली। और अब ग्लोबली भी देखें, ग्लोबली भी देखें, इसीलिए ये एक फिक्स्ड प्रोडक्ट रखा हुआ है। हाँ, ये एंगल भी सर नया एंगल आया है मेरा जी, इसको सी देखिए एक और बात है कि जो भी GML है इंटरनेशनली ठीक होगा, लेकिन इंडिया के अंदर एक्चुअली जितने भी ज्वेलर्स हैं उनके लिए एक फेल्ड कॉन्सेप्ट बन के आ गया है, बिकॉज हम लोग GML इज अबाउट 3.5% to 4.5% ईयरली में हमको लोन पे मिलता है गोल्ड बैंक से इन डॉलर टर्म्स। उसकी हेजिंग करनी पड़ती है, रेट कटिंग करनी पड़ती है, जो प्राइस रिस्क, जो प्राइस बढ़ता है, जैसे आप हम खुश होकर बोलते हैं कि हमारा 10,000 रुपये सोने का भाव बढ़ गया, 20,000 बढ़ गया, 10 लाख रुपए किलो, तो जब ये भाव बढ़ता है जिसके पास GML है, अगर उसके पास 10 किलो GML है तो उसको 1 करोड़ रुपए उसी दिन भरना पड़ेगा बैंक को, उसका प्राइस राइज के वजह से, एज अ मार्जिन कॉल। लेकिन वो गोल्ड में डील करेगा तब तो अगर रेट फिक्स कर दिया तो फिर नहीं भरना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, तो रेट फिक्स कर दिया तो भरना नहीं पड़ेगा, तो CCO के 11% हो गया ना। I think I just want to clarify some misconceptions here, and I've been hearing this from morning. There is no hard and fast rule that you have to fix your price, right? No banker will tell you that you need to fix your price. The problem that you have to see from the bank's point of view. When your bank takes probably 110, 112, 115% margin, they are working on a 6-month volatility of that metal, right? So one is bringing that into the margin. Now the metal is gone from my possession, right? And the price starts rising. What we are just saying is I don't have the asset in my hand. The price has gone up. You are the beneficiary of the price going up. Right. One is just saying is kind of bring it up to a point that my margining is covered. That is what the banks are basically saying. Okay. The problem occurs is when you take a loan but you do not have liquidity to post the margin when you have to post it. And that brings us back to this question of managing your business. What if you are over leveraged, or you have blocked all your liquidity by being in different asset classes? When there's a draw on your saying please post mark to market, it becomes a problem, right? Right. So what I'm just trying to say, there's a lot of it got to do with the conduct of the company itself. They need to know that they need to manage their liquidity position so that they can meet the MTMs right. अब टाइम बहुत कम है, 2-3 सवाल क्विकली क्योंकि टाइम खत्म हो गया। अगर कोई पूछना चाह रहे हो 2-3 सवाल तो आप पूछ सकते हैं, आप में से कोई अगर पूछना चाह रहा है। That's we need to maintain CRR and SLR on deposits, not on assets. हाँ, on deposits, yes. हाँ, borrowings, right. और कोई सवाल? हाँ, please. जैसे बताया कि मुझे ऐसे लग रहा है शायद एक प्रोडक्ट है जो होलसेलर्स और उनके लिए काम में आता है, जैसे कॉरपोरेट्स का बिलिंग होता है वो होता है, तो वो प्रोडक्ट का मुझे नाम नहीं मालूम है। बिल डिस्काउंट। हाँ, बिल डिस्काउंट बैंक से होता है, जो बैंक को उनका इनवॉइस देते हैं और डिस्काउंटिंग, यस। और वो जो प्रोजेक्ट एक टाइम होता है जैसा 45 डेज या जिसका भी जो भी टाइम होता होगा लिमिट, वो हिसाब से जो बैंक है उसमें उनका फंड ट्रांसफ़र होगा, वो एक शायद प्रोडक्ट है इसमें बैंकिंग में। उस पर थोड़ा क्लैरिफिकेशन और लोगों को यानी शायद बेनिफिशियल होगा। वो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट करके बिल डिस्काउंटिंग करते, आई थिंक ही इज आस्किंग ऑन दैट। अनाज में होता है। So yeah, so what is it exactly that you want to know on bill discounting? Bill discounting. Yeah. Simple word. So how it works actually शायद बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। तो यानी बैंकिंग का ये भी एक जैसे आप बोला कि ये एक प्रोडक्ट है बैंक में, बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि कैसे उसका यूज होता है, कैसे प्रॉपरली यूज कर सकते हैं वो बिजनेस में। Yeah. So I think conceptually bill discounting would be that you have a receivable which you are discounting to present value at some rate, right? So you're kind of realizing your money
at an earlier date at some rate. That is what bill discounting. So it creates liquidity for you basis on your future receivables. Okay. So, but you need to go to your relationship manager to, ask him and discuss these proposals. Right. और कोई सवाल? नेवल जी, जो एक खाली एक जो सिबिल की एक बात चली थी, जैसे आपने बताया कि वो उसको पैसा 5 बैंकों से मांगने जा रहा है इसलिए रेटिंग कम है। मेरा आपसे सवाल ये कि सब बैंक का रेट अलग है, सब बैंक अलग चार्ज करती है, तो मैं एज अ कस्टमर चाहूँगा ना, मुझे आप सस्ता दे रहे हैं, ये सस्ता दे रहे हैं, मुझे कौन सस्ता दे रहा है, मेरा टारगेट ये है। मेरा टारगेट ये नहीं है कि मुझे 5 जगह फाइल भेजना, मेरे लिए उल्टा बॉदरसम है। लेकिन आप देखेंगे कि एक बैंक दूसरे बैंक के चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, वेवर, प्रोफेशनल फी, पीएफ, इतनी सब चीज़ें हैं जिस पे हर जगह नेगोशिएट हो सकता है। वो क्लैरिटी एज अ कस्टमर मुझे चाहिए, इसलिए मैं 5 जगह भेज रहा हूँ। मतलब मुझे सिबिल का, इसलिए मेरा इंटेंट वो है खाली, मेरा इंटेंट ये नहीं है कि मेरे को कोई दे नहीं रहा कि 5 जगह जाना है। हाँ। ये बात ठीक है, जहाँ बेटर डील की खोज में वो जाते हैं एक्चुअली। You can avoid this by having external rating on your own. So you no need banker, no need to go and check your rating. कभी बार देखना की जरूरत नहीं रहता। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मान लो इनकी रेटिंग अच्छी भी है, लेकिन सेम रेटिंग पे एक बैंक कुछ और ऑफर कर रहा है, दूसरा बैंक कुछ और ऑफर कर रहा है, और इसीलिए इनको 5 बैंकों में जाना पड़ता है। जहाँ पे बेस्ट इनको ऑफर मिलेगा वहाँ जाए। रेटिंग क्यों नीचे जा रहा है, वो बैंकर चेक करता है। आप नहीं समझ रहे, मैं वो ये पूछ रहा है कि मान लो सपोज की रेटिंग ए है, राइट, ए रेटिंग पे, इनकी रेटिंग ए पे, ए रेटिंग पे ही 5 बैंक उनको अलग अलग रेट बता रहे हैं। उनका प्रॉब्लम ये है, रेटिंग सेम है, रेटिंग में कोई अंतर नहीं है, रेटिंग जो है वो तो है, उस पर कुछ नहीं कर सकते अब, बट सेम रेटिंग पे अलग अलग बैंक अलग अलग ऑफर कर रहा है, इसलिए इनको 5 बैंक। दैट इज प्योरली नेगोशिएशन। हाँ, वो वही कह रहा है। नहीं, मैंने इसलिए शुरू में एक क्वेश्चन निकाला था कि हमको एक अधिकार होना चाहिए कि हम 10 जगह जाके चेक करें। हमारा कस्टमर भी तो जाके सब देख रहा है ना, सिविल खराब नहीं। तो ये मेरा पहला ही क्वेश्चन था आज का कि सिविल क्यों खराब हो रहा है उसके ऊपर मेरा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप ही सिविल रेटिंग लेके बैंक को दे दो। पर फिर भी मैं बैंक के पास जाता हूं तो वो पहले मेरे से बात करने के पहले वो मेरा सिबिल चेक करने जाता है। उसने चेक किया, अच्छा हमको पता भी नहीं होता उसने चेक किया है कि नहीं किया, इधर हमारा हिट हो जाता सिबिल रिकॉर्डिंग। आज के बाद नहीं होगा सिविल खराब आप लोगों का। 2 बैंकर यहाँ बैठे हैं, आज के बाद कुछ सिविल खराब नहीं होगा आप लोगों का। चलिए, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, आई हैव सम क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन। हाँ, नहीं, ये इम्पोर्टेंट सवाल, अगर ये क्विकली बता पाए कैसे ठीक करें सिविल को अगर गड़बड़ हो रहा हो तो। एज ए बैंकर आप क्या रिकमेंड करेंगे, क्या सुझाव देंगे सिविल ठीक करने का? यू हैव टू वेट टिल योर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, financials get better than the last year. Good afternoon everyone, I am Rajesh Khandelwal from Khandelwal Jewelers and I am also in the another industry, Khandelwal Sarees. एक क्वेश्चन पहले तो ये था कि नितिन जी ने जो GCL के बारे में क्वेश्चन किया था, रिसेंटली मैंने अपना बैंक चेंज किया तो मेरा जो साड़ी का बिजनेस है उसमें मुझे कोई कोलेटरल मांगा नहीं गया। तो ये क्या सिर्फ हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री में ही है? नहीं, वो CGTMSE लोन होगा खंडेलवाल साहब, वो CGTMSE लोन होगा। नहीं, GCL है सर, GCL है, आई नो GCL है, कोविड के टाइम पे मुझे मिला था, GCL है। और मेरे साड़ी के मेरे से भी नहीं मांगा गया, मैंने भी शिफ्ट किया नितिन जी, नहीं मुझे नहीं मांगा गया है, कोलैटरल नहीं मांगा गया। एक ये क्वेश्चन था। दूसरा जो मैं नहीं, मैं ये सिर्फ मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में हो रहा है क्या, ये पूछना। सिर्फ ज्वेलरी इंडस्ट्री में मांगा जा रहा है, एक्सपोजर सिर्फ ज्वेलरी के लिए चाहिए क्या, वो ये मेरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो मैं सुबह से GML पे डिस्कशंस हो रहा है, मुझे एक और क्वेश्चन पूछना था कि अगर मैं जो फर्स्ट डे पे अगर अपना एक केजी गोल्ड लिया है मैंने, समझो बैंक से एज अ GML, तो मैं फर्स्ट डे उसको हेज कर लेता हूँ तो क्या उसमें मुझे कुछ कॉस्टिंग का फर्क पड़ेगा? हाँ, नहीं, हेजिंग में क्यों इंटरेस्ट का फर्क पड़ेगा? रेट फिक्स कर लिया तो वो उनका काउंटिंग को चालू हो जाता, 6 महीने बाद रीपेमेंट करने वाले हैं तो उस हिसाब से बराबर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बढ़ जाता। नहीं, मैं सेम जैसे मेरा यस बैंक में है, मैं मुझे लग रहा है कि अभी रेट बहुत काफ़ी कम है तो मैं आज ही उसको प्रीमियम दे के 180 डे का रेट लेके हेज कर लेता हूँ, तो उसमें भी कॉस्टिंग का फर्क पड़ेगा? प्रीमियम 50 प्रीमियम भरने के बाद नेविल नया अकाउंट खोल ही नहीं रहा है, प्रॉब्लम वो है।
Yeah, so नहीं, so सब yes bank के पास है. The thing is, when you fix your when you fix the forward day one, basically आपका जो margin आपने place किया था over the principal, suppose you place 110% margin, वो तो that 10% gets knocked off, becomes that's free, right? Free, yes. 10% is free. What you are paying is basically the forward premium. Premium only. Yes, forward premium. Yes, yes. Now, at points in time, you have to see whether booking this dollar rupee gold forward and dollar rupee forward is better for you from a funds management point of view, because sometimes the GOFO may be lower, the dollar rupee forward must be lower, so it works out better for you. Sometimes it may not work better for you, therefore you may choose not to do a forward. Our general advice to people is, look, if when you sell your jewelry, whatever money you generate, close off your loan, because it's essentially an overdraft. If you do that, you do not have a problem in this product. The problem occurs when people sell you the metal, generate rupee, and do not close their loan. That is when the problem starts occurring. In this case, what you are saying that I have done a GML and therefore my interest rate, I've done a forward, therefore my interest rate goes up. I don't think that happens. No, I'm enjoying this GML from last 10 years, and I had never been in loss at all till a single time. Right. So I'm enjoying it. Exactly. चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. अब टाइम हमारा ओवर हो गया. पॉइंट टेकन, इसके ऊपर बातचीत होगी. मेहरा जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं पूरे डिस्कशन को, एंड आई होप कि ये पूरा डॉक्यूमेंट बनेगा इसका और डिटेल में जाएगा प्रपोजल, और आई होप कि इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी ज्वेलर को लोन लेने में. उस सारे जो भी इश्यूज़ थे वो सब डिस्कस यहाँ पर हुए हैं. तो आई होप फॉर द बेस्ट. थैंक यू सो मच ऑल द पैनलिस्ट. Thank you very much. Let's put our hands together for the entire panel for that very thought-provoking and informative discussion. I'd like to request Mr. Ashok Meenawala and Mr. Haresh Soni, both past chairmen of GJC, to kindly come on stage to felicitate our panel. Mr. Ashok Meenawala and Mr. Haresh Soni, could you please help us felicitate the panel? Both are past chairpersons of GJC.